Again, I am back with many clauses. So, are you guys ready with me to cover clause 3 to clause 6 of part 1 of schedule 1 of professional ethics? Yeah. So, we will discuss some question here. Clause 3. Clause 3 क्या बोलता है? Accept of or agrees to accept any part of the profit of professional work of a person who is not a member of ICI. Or provide nothing here content shall be construct or as prohibiting a member from entering into profit sharing or other similar arrangement, including receiving any share, commission or brokerage in the fee with member of such professional body or other person having qualification as is referred to in item 2 of the part. So इधर आपको पार्ट 1 के क्लोज 2 क्या बोलता है? ना देने का मतलब आप किसी को दे नहीं सकते, और पार्ट 3 क्या बोल रहा है? ना लेने का मतलब अब वो यहाँ पे मना कर रहा है कि आप किसी से एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हो. ओके, तो इसमें अब अपन एग्जांपल देखते हैं. मिस्टर प्रीति इज़ अ प्रैक्टिसिंग CA. मिस्टर प्रीत इज़ अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट representing matters in the court of law. Mrs. Preeti and Mr. Preet decided to help each other in the matters involving their professional expertise. Accordingly, Ms. Preeti recommend Mr. Preet in all tax litigation matters in the court of law, and Mr. Preet consult Mr. Preeti in all matters related to finance and other related matters which comes to him in arguing various cases in the court of law. Consequently, they started sharing some part in the profit of their professional work. So, sharing and accepting of profit with an advocate. According to the clause 2 of part 1 of schedule, a person, a CA in practice should be deemed to be guilty of professional misconduct अगर वो किसी को भी पे करता है या फिर अलाउ और एग्री टू पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी शेयर, कमीशन or brokerage in the fees or profit of his professional business to any person other than a member of institute को कर सकता है वो for the purpose of rendering such professional service from time to time in or outside India. Further, clause 3 क्या बोलता है? CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct कब? जब वो एक्सेप्ट करेगा एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रोफेशनल वर्क ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट. However, a practicing CA of the institute can share fees or profit arising out of professional business with some such member of professional bodies or with such other person having qualification as may be prescribed. कौन प्रिस्क्राइब करेगा? काउंसिल. काउंसिल प्रिस्क्राइब कर सकता है certain professional bodies. ओके, सो इधर 53 CA क्या बोल रहा है? ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट रेगुलेशन एक्ट 1988 is the said regulation the member of Bar Council of India is included. Therefore, Mr. Preet, an advocate, a member of Bar Council, allowed or share part of profit of his professional work with Mrs. Preeti. Miss Preeti से वो कर सकता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर उसके प्रोफेशनल वर्क का. मिस प्रीति या प्रैक्टिसिंग CA will not be held guilty of any above mentioned clause for paying and accepting part of profit from Mr. Preet. इस केस में मिस्टर प्रीत जो है वो कौन था? एडवोकेट है. तो एडवोकेट काउंसिल के अकॉर्डिंग अलाउ है. एनी प्रोफेशनल बॉडी अलाउ क्लॉज 3 बोलता है कि आप उससे एक्सेप्ट कर सकते हो, और क्लॉज 2 क्या बोलता है? आप पे कर सकते हो किसको? अदर देन मीन्स उसके एक्सेप्शन में क्या है? या तो वो CA हो, पार्टनर हो, या फिर कोई भी प्रोफेशनल बॉडी जो काउंसिल अलाउ करती है. ठीक है, तो आप इसमें गिल्टी नहीं हो. तो इसमें आप रेफरेंस किसका दे सकते हो? दोनों क्लोज का देना पड़ेगा आपको, पे और एग्रीज टू पे 2 और फिर अलाउ वाला. अब क्लोज 4 क्या बोलता है? एंटर्स इनटू पार्टनरशिप. सॉरी, क्लोज 4 क्या बोलता है? एंटर्स इनटू पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया. वो पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है इन और आउटसाइड इंडिया विथ एनी पर्सन. CA is allowed to enter into partnership with any person outside in India और outside India. पर उसका एक्सेप्शन क्या है? वो किसके साथ नहीं कर सकता? अदर देन CA अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और सच अदर पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी.
having such qualification as may be prescribed, including a resident who, but for his residence abroad, would be entitled to be registered as a member under clause 5 of subsection 1 or section 4. उस क्वालिफिकेशन आर रिकॉग्नाइज बाय सीजी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर काउंसिल ने उसकी क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज कर रखा है और उसको अलाउ कर रखा है फॉर एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप फॉर द पर्पस ऑफ परमिटिंग सच पार्टनरशिप. सो इन दिस केस कौन कौन एंटर नहीं कर सकता है? एनी पर्सन इन और आउटसाइड इंडिया. बट इसका एक्सेप्शन क्या है? कोई भी CA इन प्रैक्टिस और अदर पर्सन एज में भी मेंबर या फिर अदर प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, वो अलाउ है पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए. इसका क्वेश्चन क्या है क्लोज 4 का? ओके, मिस्टर P is CA in practice enter into partnership with Mr. L, an advocate for sharing of fees for a work sent by one to the other. However, due to some disputes, the partnership was dissolved after 1 month without any fees has been received. Partnership with an advocate allow है बिकॉज वो अलाउ है बिकॉज बार काउंसिल मेंबर अलाउ करता है एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी जो प्रिस्क्राइब करी है. क्लोज 4 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल of CA Act 1949, a CA will be guilty of professional misconduct if he enters into partnership with any person. But इसके एक्सेप्शन क्या है? अदर देन वो किसके साथ कर सकता है? CA इन प्रैक्टिस और अ पर्सन रेसिडेंट विदाउट इंडिया बट for his residence abroad would be entitled to be registered as a member under clause 5 section 4 कौन से में? section 4 subsection 1 of and clause 5. उस क्वालिफिकेशन आर रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. क्वालिफिकेशन कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लोज 5 सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रहा है और द काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ परमिटिंग सच पार्टनरशिप. However, Regulation 53B of CA Act Regulations 1988 permits chartered accountant in practice to enter into partnership with other prescribed professional, which includes an advocate, a member of Bar Council of India. In the instant case, Mr. P, a chartered accountant, has entered into partnership with Mr. L, an advocate. Thus, he would not be guilty of professional misconduct as in clause 4 of part 1 of first schedule. Okay, तो वो अलाउ करता है इसलिए वो गिल्टी हेल्ड नहीं होगा. फिर क्लोज 5 क्या बोलता है? फर्स्ट शेड्यूल क्लोज 5 secures either through the service of a person who is not an employee of such chartered accountant or who is not his partner. Sorry for little bit disturbance. So we will continue with clause 5. Secures either through the service of a person who is not an employee of such CA or who is not his partner by means which are not open to a chartered accountant. या तो वो secure कर रहा है वर्क जो एम्प्लॉय नहीं है ऑफ सच चार्टेड अकाउंटेंट और ना उसका पार्टनर है. और एक और मीन्स क्या हो सकता है? बाय वे नॉट ओपन टू ऑल चार्टेड अकाउंटेंट्स एनी प्रोफेशनल बिजनेस provided that nothing herein contained shall be construed as prohibiting any agreement permitted in terms of item 2, 3 and 4 of this part. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है. सिक्योर किससे कर रहा है? सर्विसेज हु इज़ नॉट एन एम्प्लॉय या फिर वर्क नॉट ओपन टू CA. क्लॉज 6 solicit client or professional work either directly or indirectly by way of circular. This is the important क्लोज. ये हर जगह आपको क्लोज का रेफरेंस यूज़ आता है. सो सॉलिसिट कर रहा है क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द वे ऑफ सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू और बाय अदर मीन्स प्रोवाइडेड डेट नथिंग हियरिंग कंटेंट shall be construct or preventing or prohibiting any chartered accountant for applying or requesting or for inviting or securing professional work from other CA in practice or a member responding to the tenders or inquiries issued by various users of professional service or organization from time to time and securing professional work as a consequence. क्लॉज 6 क्या बोल रहा है? सॉलिसिट क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क. आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी से आप वर्क सेकेंड नहीं करवा सकते हो बाय द वे ऑफ सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल कम्युनिकेशन या फिर इंटरव्यू के थ्रू और बाय अदर मीन्स
एंड ये प्रिवेंट और प्रोहिबिट क्या कर रहा है सीए को फ्रॉम, ये आप अनादर सीए से वर्क ले सकते हो, सिक्योर करवा सकते हो प्रोफेशनल वर्क, उसमें आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं कर रहे हो. ए मेंबर फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स और इंक्वायरीज इशूड बाय वेरियस यूजर्स ऑफ प्रोफेशनल सर्विस फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसका एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन अपन को है एसएम स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है. ओके इसमें क्या बोला है, मिस्टर हॉनेस्ट अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस रोट 2 लेटर्स टू मैसर्स XY चार्टेड अकाउंटेंट फर्म. मिस्टर हॉनेस्ट ने ध्यान रखना लेटर किसको लिखा, अनादर फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट जो कि सीए फर्म है, रिक्वेस्टिंग देम टू अलॉट हिम सम प्रोफेशनल वर्क as he did not have significant practice or client. He also wrote later to Messrs ABC, a firm of chartered accountant. Messrs ABC भी firm of CA है, for securing professional work. Mr. Claver, another CA, informed ICI regarding Mr. Honest's approach to secure his professional work. Is Mr. Honest wrong in soliciting professional work? एज पर क्लॉज 6 अपन ने क्या पढ़ा है कि कोई भी सीए दूसरे सीए से सॉलिसिट नहीं कर सकता है वर्क. इसमें आप क्या बोला है, सेक्यूरिंग प्रोफेशनल वर्क. क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द सीए एक्ट स्टेट्स दैट whether chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of misconduct if he solicit client or professional work either directly, indirectly or by circular, advertisement, personal communication or interview by any other means, provided that nothing herein contained shall be construed as preventing or prohibiting any CA from applying or requesting or inviting securing professional work from another CA. अपन ने ऊपर एक्सेप्शन में क्या पढ़ा था कि वो अनादर सीए से प्रोफेशनल वर्क सिक्योर कर सकता है. सो इन दिस केस उसने 2 फर्म से, मिस्टर हॉनेस्ट ने 2 फर्म से करा है, तो दोनों फर्म कौन सी थी, सीए. सो इसमें क्या लिखा है कि वो सीए से सिक्योर कर सकता है. सच अ रेस्ट्रेंट हैज़ बिन पुट सो दैट मेंबर मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट एंड मे बी एबल टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स. मतलब अगर वो किसी बाहर से करेगा तो उसकी रेपुटेशन में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज वो अपना प्रोफेशनल वर्क मांग के लोगों से करवा रहा है, तो ये गलत होगा. सो वो किसी और मेंबर से नहीं मांग सकता, उसको इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी. कंक्लूजन, in the given case, Mr. Honest wrote letters to only chartered accountant, Messrs. XY and ABC, requesting them to allot some professional work to him, which is not prohibited. ठीक है, तो मिस्टर हॉनेस्ट ने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं करा है. अब क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, Messrs. LMN, a firm of CA, respond to the tender from a state government for computerization of land revenue records. For this purpose, the firm also paid 50,000 as earnest deposit as a part of terms of the lender. ठीक है, रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स, क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में अपन ने पढ़ा है रिस्पॉन्डिंग टू द टेंडर्स को लेके. गाइडलाइन फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द टेंडर्स एक्सेट्रा. गाइडलाइंस क्या बोलती है, इफ़ मैटर रिलेटेड टू एनी सर्विस अदर देन ऑडिट, मेंबर कैन रिस्पॉन्ड टू एनी टेंडर. मतलब इफ मैटर जो है वो रिलेटेड टू एनी सर्विस अदर देन ऑडिट, अगर ऑडिट को छोड़ के कोई भी सर्विस को लेके टेंडर है, तो फर्दर इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन एक्सक्लूसिव एरिया मेंबर्स आर परमिटेड टू पे रीजनेबल अमाउंट टूवर्ड्स अर्नेस्ट मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट. सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखना, कोई भी ऑडिट मतलब सर्विस जो है अदर देन ऑडिट होगी, सर्विस अदर देन ऑडिट होगी, तो मेंबर्स कैन रिस्पॉन्ड टू एनी टेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन एक्सक्लूसिव एरिया. अगर वो रीजनेबल अमाउंट ले रहा है टूवर्ड अर्नेस्ट मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो वो अलाउ है. सिंस द कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स डज नॉट फॉल विद इन द एक्सक्लूसिव एरिया ऑफ CA, मेसर्स LMN कैन रिस्पॉन्ड टू टेंडर एज वेल एज डिपॉजिट जो करा है उसने अर्नेस्ट 50,000 का, शॉल नॉट हैव टू बी कमिटेड एनी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. तो वो रिस्पॉन्ड कर सकता है टू एनी टेंडर, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, अदर देन ऑडिट. अब इसमें क्या है, थर्ड, मेसर्स XYZ कंपनी अ फर्म ऑफ CA क्रिएटेड अ वेबसाइट क्रिएट करी है चार्टेड अकाउंटेंट ने, www.xyzindia.com. The website beside containing details of the firm and the biodata of the partners and contains the passport size photographs of all the partners of the firm. अपन ने क्लॉज 6 में पढ़ा है, कोई भी CA फर्म
पासपोर्ट साइज फ़ोटो वेबसाइट क्रिएट कर सकती है। वेबसाइट जो है वो पुल मॉडल पे होनी चाहिए रेदर देन पुश मॉडल। एंड वेबसाइट जो है वो डिटेल कंटेंट कर सकती है फर्म की, और वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो पार्टनर्स अलाउ है लगाने के लिए, बट वो बहुत ज़्यादा बड़े फ़ोटोज़ और ज़्यादा साइट पे दिखावा नहीं कर सकते, बट पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो अलाउ है। अब इसका अपन आंसर पढ़ते हैं। Hosting details on website. Details as per detailed guidelines of the ICAI laid down in the clause 6 of part 1 of first schedule. क्या बोलता है? CA of the firm can create its own website by using any format subject to guidelines. Guidelines के अकॉर्डिंग वो CA वेबसाइट क्रिएट कर सकता है. However, website should be designed that does not solicit client professional work or should not amount to direct or indirect advertisement. The guidelines of the ICAI also allow firm to put up the details of the firm biodata or display a passport size photograph. Sorry. In the case Messrs XYZ, all the guidelines seems to be have compiled and there appears no violation of the CA Act. उन्होंने पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाया तो उससे कोई वायलेशन नहीं हुआ है, वो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. क्वेश्चन 4. मिस्टर एक्स is a chartered accountant published a book and gave his personal detail of as a author. This Mr. X, a chartered accountant, published a book and gave his personal details as a author. उसने बुक पब्लिश करी और उसकी पर्सनल डिटेल दी. तो सॉलिसिटेटिंग प्रोफेशनल वर्क. क्लॉज 6 क्या बोलता है? रेफर्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ अ मेंबर इन प्रैक्टिस इफ सॉलिसिट क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क. अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉलिसिट कर रहा है क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क बाय सर्क्यूलर, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू और बाय एनी अदर मीन्स. इसे आप रट लो. अगर आप ये 4 वर्ड्स लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे. वो प्रोफेशनल मीन्स वो सॉलिसिट कैसे कर रहा है क्लाइंट को या फिर प्रोफेशनल वर्क को? बाय सर्क्यूलर, एडवर्टाइजमेंट, प्रोफेशनल पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू और बाय एनी अदर मीन्स. Therefore, member should not adopt any indirect method to advertise. मतलब वो indirect method adopt कर रहा है for advertise their professional practice with a view to gain publicity. मीन्स पब्लिसिटी गेन करने के लिए कोई भी इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहा है तो वो क्या इनडायरेक्टली सॉलिसिट कर रहा है क्लाइंट को या फिर उसके प्रोफेशनल वर्क को. सच अ रेस्टोरेंट में भी प्रैक्टिस सो इस मेंबर टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट and it may be able to command their respect of their prospective client. While elaborating forms of soliciting work, the council has specified member is not permitted to indicate in a book or article published by him, his association or within a firm of CA. In this case, Mr. S जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट पब्लिश कर रहा है बुक और उसमें उसने उसका सारा डिटेल शेयर किया. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डिटेल शेयर करना अलाउ नहीं है, इसलिए इन दिस केस वो क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस में वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा एज पर कौन सा क्लोज? क्लोज 6. ठीक है, क्योंकि वो बुक लिख रहा है बट ऐसे ऑथर वो अपनी पर्सनल डिटेल्स को हाईलाइट नहीं कर सकता है फॉर गेनिंग पब्लिसिटी. Mr. Ravi, a newly qualified CA, started his practice and sought client through telephone calls from his family and friends, almost all of them employed in one or other retail trade business. One of his friend, Mr. Ravi, gave him an idea to start online service to give stock certification to traders with cash credit limit in bank. Mr. Ravi started a website with colorful, catchy designs and shared the website address to all social media posts and stories. Also tagged 40 traders of his local committee with the caption "Simple Online Stock Certification Service." Besides, Mr. Ravi entered into an agreement with a digital marketer to give him 8% commission. Oh, वो काय के लिए रेडी हो गया? 8% कमीशन शेयर करने के लिए, देने के लिए. डिस्कस द एक्शन Mr. Ravi are valid in the light of professional ethics and various pronouncement and guidelines issued by ICAI. दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ICAI ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है. एज पर क्लोज 6, इसका रेफरेंस अपन कैसे लिखेंगे? पहले एज पर क्लोज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CA एक्ट इन प्रैक्टिस. अब शेड्यूल क्या है? डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. अगर वो सॉलिसिट कर रहा है क्लाइंट का प्रोफेशनल वर्क आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सर्क्यूलर, एडवर्टाइजमेंट, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू और एनी अदर मीन्स. मिस्टर रवि इज रॉन्ग इन सीकिंग क्लाइंट थ्रू फैमिली एंड फ्रेंड्स. वो फैमिली और फ्रेंड्स से अलाउ नहीं करता है अपन को इंस्टीट्यूट
कि आप क्लाइंट्स लो, बिकॉज आपने 6 में क्या पढ़ा है, फ्रॉम एनी अदर पर्सन, मीन्स चार्टेड अकाउंटेंट से ले रहा तो कर सकता है, बट अदर पर्सन से वो अलाउ नहीं करता है, तो फैमिली और फ्रेंड्स से नहीं होगा. क्रिएटिंग अ वेबसाइट इज़ नॉट अ नॉन कंप्लाइंस प्रोवाइडेड, इट इज इन द लाइन विद द गाइडलाइन इशूड बाय इंस्टीट्यूट इन दिस रिगार्ड. वन ऑफ द गाइडलाइंस क्या है वेबसाइट की, शुड नॉट बी इन पुश मोड. ठीक है, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, वो पुल मॉडल पे कर सकता है बट पुश मॉडल पे नहीं कर सकता है. फर्दर मेंशनिंग द क्लाइंट नेम ऑल्सो प्रोहिबिटेड. वेबसाइट में आप क्लाइंट के नेम प्रोहिबिटेड है, आप मेंशन नहीं कर सकते हो. इन द गिवन सिचुएशन अवी ने क्या करा है, उसने शेयर करा है सोशल मीडिया पे और स्टोरीज पे और टैग भी करा है, और लोकल कमिटी से भी उसने कैप्शन करवाया, और उसने क्या लिखा है, सिंपल ऑनलाइन स्टॉक सर्टिफिकेशन सर्विस, मेंशनिंग क्लाइंट, करंट क्लाइंट को भी मेंशन कर दिया उसने. दिस इज एन कंप्लीट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ द वेबसाइट इशूड बाय ICAI. CA Avi would be held guilty of professional misconduct under the Clause 6 of Part 1 of First Schedule of CA Act 1949. ठीक है, इसमें आप पहले मेंशन करना पुश मॉडल पे नहीं कर सकता है, फिर उसके बाद उसने ये हाईलाइट करा है सब कुछ, तो ये भी अलाउ नहीं है. CA Srishti and company, CA Srishti and CA Mishti are two partners of CA firm, Srishti and Mishti and associates. Being very precious, CA Srishti organized a religious ceremony at her home, where she instructed her printing agent to add a designation CA with her name in the invitation card. Later on, invitations were distributed to all relatives, close friends of both the clients. Okay, तो इसमें रिलीजियस सेरेमनी किसके हो रही है, CA सृष्टि. अब आपको क्लॉज 6 ऑफ शेड्यूल पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल फर्स्ट क्या बोलता है याद करो. उसमें वो बोलता है कि आप डेजिग्नेशन CA डिस्क्लोज कहाँ कर सकते हो, फॉर पर्सनल रिलेटिव, फॉर एनी रिलीजियस सेरेमनी, या फिर आपकी कोई पर्सनल कार्ड्स पे लिखवा सकते हो कोई भी सेरेमनी के लिए, इनविटेशन कार्ड पे, पर वो सिर्फ खुद के लिए होना चाहिए, नॉट फॉर पार्टनर. डेजिग्नेशन सिर्फ अलाउ खुद के लिए है. सो प्रिंटिंग ऑफ डेजिग्नेशन CA और ऑन इन्विटेशन एंड रिलीजियस सेरेमनी एज पर क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949. ये पूरा क्लॉज लिखना आपको, वही सॉलिसिट कर रहा है क्लाइंट का डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू और बाय एनी अदर मीन्स. हाउएवर काउंसिल ऑफ द ICAI is of the view that designation chartered accountant as well as the name of the firm may be used in the greeting card invitation for marriage. अगर आप खुद की शादी तो आप खुद का डेजिग्नेशन CA यूज़ कर सकते हो, लाइक CA सृष्टि. रिलीजियस सेरेमनी में भी कर सकती है, या फिर अदर स्पेसिफाइड मैटर्स विच प्रोवाइड सच ग्रीटिंग कार्ड्स और इन्विटेशंस एक्सेट्रा आर सेंड टू ओनली क्लाइंट. किसके क्लाइंट हो सकते हैं वो, रिलेटिव्स एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ मेंबर कंसर्न. अपन ने इस केस में किसके हो सकते हैं, CA सृष्टि के हो सकते हैं. ठीक है, फिर इन द गिवन केस CA सृष्टि हैज़ इंस्ट्रक्टेड टू राइट डेजिग्नेशन CA on invitation card for a religious ceremony and distributed the same to all relatives, close friend of both the partners. तो इन दिस केस कौन गिल्टी होगा, CA सृष्टि और मिष्टी, और फिर ओनली वन पार्टनर. देखो, इन द कंटेस्ट इट मे बी नोटेड दैट काउंसिल ने अलाउ कर रखा है इन्विटेशन फॉर रिलीजियस सेरेमनी सेंड टू क्लाइंट और मेंबर कंसर्नड ओनली. सो CA सृष्टि वुड बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट under the said clause for sending invitation to the relative close friends of client मिष्टी as well. अब इसमें एक गलती हो सकती है कि CA सृष्टि, CA आप ये सोच सकते हैं ना कि CA सृष्टि को तो अलाउड है, बट CA मिष्टी के इस पर भी गया है, तो मिष्टी जो है वो गिल्टी हो जाएगी. बट नो, भेजा किसने है, सृष्टि ने. सो CA सृष्टि है वो मिसकंडक्ट कर रही है, तो वो गिल्टी होगी as per the clause, not Mishti. So you have to write only the name of CA सृष्टि, ये ध्यान रखना. QOPAQ and Associates, a firm of chartered accountant, respond to the tender issued exclusively for CA by organization in the area of tax audit. However, no minimum fee was prescribed in the tender document. टेंडर किसका कर रहा है वो, एक्सेप्ट फर्म ऑफ CA रिस्पॉन्ड टू द टेंडर
एक्सक्लूसिवली फॉर CA बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन द एरिया ऑफ टैक्स ऑडिट. ओके, चलो इसका आंसर पढ़ते हैं. रिस्पॉन्डिंग टू द टेंडर, अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था कि वो टेंडर को रिस्पॉन्ड कर सकता है, कोई भी वो डिपॉजिट कर सकता है, बट फॉर नॉट फॉर दी पर्पस ऑफ ऑडिट. ऑडिट के लिए वो नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना. लेस डाउन द गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्डिंग द टेंडर, इट स्टेट्स दैट अ member may respond to tender inquiry issued by various user or professional service from time to time and secure क्या कर रहा है प्रोफेशनल वर्क एज अ consequence. However, a member of institute practice shall not respond to any tender issued by organization or under professional service in the which are exclusively reserved किसके लिए हो रही है, CA के लिए, या फिर एज एन ऑडिट अटेस्टेशन सर्विस. Though such restriction shall not be applicable where minimum fee of the assignment is prescribed in the tender itself or where the areas are open to professional along with CA. In the instant case, OPAQ and associate respond कर रहा है टेंडर को ऑफ टैक्स ऑडिट विच इज़ एक्सक्लूसिवली रिजर्व किसके लिए हो रहा है, CA के लिए, इवन दो नो मिनिमम फी इज़ प्रिस्क्राइब्ड. तो वो अनादर CA और टैक्स ऑडिट मीन्स एनी ऑडिट एरिया में वो टेंडर इशू नहीं कर सकता है. तो इसमें वो गिल्टी हेल्ड हो जाएगा फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द टेंडर एज पर क्लोज 6. क्लोज 6 सॉलिसिटेशन. सॉलिसिट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे एरियाज कवर है. सो देखो अपन क्वेश्चन ऐड कर रहे क्लोज 6 का. दिस इज सफिशिएंट, ओनली यू कैन लिसन और रीड इट वंस बाय सीइंग वीडियो. तो आपको सब कुछ माइंड में फिट हो जाएगा. एंड द फॉर्मेट फॉर द आंसर राइटिंग शुड बी फॉलोड लाइक दिस. ICI वाला ही फॉर्मेट फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा होगा. सबसे पहले आप क्लॉज लिखो, उसका पूरा क्लॉज का नाम लिखो, फिर उसके बीच में क्लॉज को एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, फिर उसके बाद जो केस में बोला है कि उसने क्या करा है, क्या नहीं कर सकता था, फिर उसका कंक्लूजन, मतलब ये पूरा केस बताओ उसको. फिर उसके बाद इसका जो क्वेश्चन में केस पूछा है, केस पर प्लस कंक्लूजन दो उसका. दैट्स द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग आंसर. तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे. ABZ एंड कंपनी, अ फर्म ऑफ CA, डेवलप क्या कर रहा है, वेबसाइट abz.com. द कलर चूजन फॉर द वेबसाइट वॉज वेरी ब्राइट ग्रीन एंड वेबसाइट वॉज टू रन अ पुश टेक्नोलॉजी. ओ, अपन को क्या करना चाहिए, पुल टेक्नोलॉजी पे. द नेम ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म एंड द मेजर क्लाइंट्स भी डिस्प्ले करे, जो कि अलाउ नहीं है. वेबसाइट विदाउट एनी डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन फ्रॉम एनी रेगुलेटर. Posting of particular on the website. The Council of Institute has approved posting of particulars often on a website of clause 6. clause 6 क्या बोलता है कि वेबसाइट पे आप क्या क्या डिस्क्लोज कर सकते हो. काउंसिल ने क्या क्या गाइडलाइंस लाया है उसके लिए. नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द कलर यूज इन द वेबसाइट. ये सब आप कर सकते हो. क्या 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 आप कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. किसको लेके, कलर आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो. द वेबसाइट रन ऑन द पुल टेक्नोलॉजी नॉट ऑन अ पुश टेक्नोलॉजी. और नेम ऑफ क्लाइंट एंड फीस जो है वो आप नहीं दे सकते हो, और पुल टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, पुश अलाउ नहीं है. हाउएवर डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द क्लाइंट एंड द फीस चार्ज ऑन द वेबसाइट इज परमिसिबल only whether it is required by the regulator, whether or not constituted under the statute in the India or outside India provided date. Such disclosure is only to the extent of requirement of the regulator. Where such disclosure of names of client and other fees charge made on the website, the member or firm shall ensure, क्या ensure करेगा, mention on the website in italics below such disclosure itself. The disclosure in the terms of the requirement, name of the regulator, name of the country, area, rule, directive under which disclosure is required by the regulator. तो इसमें ABZ एंड कंपनी वुड हैव नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द कलर यूज इन द वेबसाइट. ठीक है, वो कलर कौन सा भी यूज़ कर सकता है, बट उन्होंने क्या कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया है, अदर 2 गाइडलाइन. उन्होंने पहली बात तो वो पुश मॉडल पे करा रेदर देन पुल मॉडल. और ठीक है, देखो यहाँ पे एक तो उन्होंने क्या करा है, पुश मॉडल पे करा है, और उन्होंने डिस्क्लोज किसके करे, नाम क्लाइंट के. तो ये दोनों मिसकंडक्ट हो जाएंगे. सॉलिसिट कर लिया उन्होंने वर्क क्लोज 6 के अकॉर्डिंग, तो ये मिसकंडक्ट हो गया. कौन सा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. अपन को जो भी फर्स्ट शेड्यूल में बोला है वो सब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा. किसके लिए, जो COP होल्ड करता है, प्रैक्टिस वालों के लिए है ये पूरे क्लोसेस.
Mr. Bold, a CA in practice, is created his own website in attractive format and highlight the contents in blue color. He also circulate the information contained in the website through email to acknowledge public at large about his expertise. However, due to shortage of the time, he could not initiate his website address to the institute, circulating information contained in on website. As per clause 6 of part 1 of first schedule, वो पूरा आपको क्लोज लिखना है, ठीक है. However, guideline approved by the council or institute, India permit creation of on website by a CA in his own firm name and no standard format and restrictions color is there. The chartered accountant or firm, as per the guideline, should ensure that the name of the information contained in the website on their on or through email or by any other mode except specific pull request पे वो कर सकते हैं. Further, member are not required to intimate the website address to the institute. हर वेबसाइट बनाने के बाद मेंबर को बताना ज़रूरी नहीं होता ICI को. मेंबर आर ओनली रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द वेबसाइट गाइडलाइंस. मतलब उनको गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी कि वो पुश मॉडल पे ना रखे, क्लाइंट्स के नाम डिस्क्लोज ना करें एंड बहुत ज़्यादा उसकी मार्केटिंग ना करें. इंस्टीट्यूट इन दिस रिगार्ड, Mr. Bold circulated the information contained on the website through email at the public at large. Therefore, मतलब वो ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं कर सकते, पर इसने क्या करा है, पब्लिक एट लार्ज को मेल कर दिया. Therefore, वो गिल्टी हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर द क्लोज 6. I think 2 or 3 questions left, so we will do with that. This is the important clause. So 10th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है. Mr. Brilliant, a CA in practice, created his own website in attractive format and highlight the content in blue color. Also circulate कर रहा है through email and I think ये सेम ऊपर वाला जैसा सर्कुलेटिंग इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन ऑन वेबसाइट, ठीक है, ये भी सेम है, बस इसमें नेम चेंज और क्वेश्चन. हाउएवर, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम ही कुड नॉट इंटीमेट वेबसाइट टू द इंस्टीट्यूट. तो ये इंस्टीट्यूट को ज़रूरी नहीं है करना. Messrs. SR and Associate is one of the 3 firms shortlisted by ARG Cooperative Bank for assignment of statutory audit for financial year 2021. Bank mailed the list of branches to audit firms along with the maximum fee per branch and asked them to submit quotations. SR and Associate respond to the bank and submit क्या करा उन्होंने, उनके कोटेशंस को. तो आप हमको अब शेड्यूल का अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है. प्रोविज़न ऑफ CA एक्ट 1949 शेड्यूल्स दे. तो क्या बोलता है क्लोज 6, आप ये पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब करो. प्रोवाइडेड दैट नथिंग हियरिंग कंटेंट ऑल कंस्ट्रक्टेड एज प्रिवेंटिंग और प्रोहिबिटिंग एनी CA फ्रॉम अप्लाइंग और रिक्वेस्टिंग और इन्वाइटिंग और सेक्यूरिंग प्रोफेशनल वर्क. मतलब वो अनादर प्रोफेशनल वर्क से अलाउ करता है इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस कि आप अनादर CA से आप प्रोफेशनल वर्क सेक्योर करवा सकते हैं या फिर वो टेंडर को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. वेरियस यूज़र ऑफ प्रोफेशनल सर्विस अदर, इसमें फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सेक्योरिंग वर्क एज ए कॉन्सिक्वेंस अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट और फ्रॉम अनादर्स. However, as per the guideline issued by the council of the institute, a member of institute in practice should not respond to any tender issued by organization or user of professional service in area of service which are exclusively reserved for the CA. ठीक है, इसमें क्या बोला है, एज पर द गाइडलाइंस अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा किसको, ऑर्गेनाइजेशन और यूज़र ऑफ प्रोफेशनल सर्विस इन एरियाज ऑफ सर्विस विच आर एक्सक्लूसिवली रिजर्व किसके लिए, CA के लिए, सच ऑडिट एंड अटेस्टेशन. हाउएवर, सच रिस्ट्रिक्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है वेयर मिनिमम फ़ी फॉर द असाइनमेंट प्रिस्क्राइब्ड हो रही है और वेयर द एरियाज आर ओपन टू ऑल प्रोफेशनल अलोंग विद द CA. I think this question is important. In the given case, ARG Cooperative Bank mailed the list of branches to the audit firms along with maximum fee per branch. Maximum fee बताई उसने और उसने रिस्पॉन्स करा है SR and Associate ने and सबमिट करा quotation. Keeping in the view clause 6 and guideline issued by council, it can be concluded that SR guilty हो जाएगा क्योंकि उसने यहाँ पे प्रोफेशनल में ARG में मैक्सिमम फीस पर ब्रांच भी थी और रिस्पॉन्स करा है, सबमिटेड देयर कोटेशन, तो उसने कोटेशन भी शेयर करा है. कमेंट विथ रेफरेंस टू द CA एक्ट 1949.
and schedules. There too, Mr. Vineet, the CA in practice, created his own website in attractive format and highlighted the contents in the purple color. The website is also displayed the nature of assignment handle along with the name of client without such require any of the regulator. He also circulate the information contained in website through email to acknowledge public. ओके देखो उसको कलर यूज़ करना अलाउ है, अपन ने आगे पढ़ा, बट उसको पब्लिक को एक्नॉलेज करना अलाउ नहीं है, उसको शेयर करना अलाउ नहीं है अबाउट इस एक्सपर्टाइज. और इंटीमेट नहीं भी करेगा तो चलेगा बिकॉज ICAI की गाइडलाइंस फॉलो करना ज़रूरी है, ICAI को बताना ज़रूरी नहीं है. तो इसमें सिर्फ वो मिसकंडक्ट कर रहा है क्योंकि वो पब्लिक को शेयर कर रहा है. ये ऊपर वाला जैसा सेम है बट ये पॉइंट्स में लिखा हुआ है तो अपन देख लेते हैं. देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, पहले तो पूरा शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन पॉइंट, फिर गाइडलाइन जो है काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट इंडिया परमिट क्या कर रहा है, क्रिएशन ऑफ ऑन वेबसाइट, और वो रिस्ट्रिक्शन कलर्स को लेके कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहा है. फिर इसमें मिसकंडक्ट नहीं हुआ है. दिस आंसर फॉर्मेट इज़ क्वाइट गुड, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं कि कलर के लिए कोई मिसकंडक्ट नहीं है. फिर चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो एंश्योर क्या कर रहा है, ईमेल के थ्रू वो शेयर कर रहा है और वो पुश मॉडल पे कर रहा है, स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट पे नहीं. तो वो सर्कुलेट जो कर रहा है पब्लिक एट लार्ज को, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी हो जाएगा. फिर इसका जो नेचर ऑफ असाइनमेंट है, हैंडल टू बी डिस्प्लेड पुल रिक्वेस्ट पे होना चाहिए, कैनॉट बी गिवन विदाउट सच रिक्वायरमेंट फ्रॉम एनी अदर रेगुलेटर. मिस्टर विनीत ने क्या करा है, उसका नेचर ऑफ असाइनमेंट हैंडल विद द नेम ऑफ द क्लाइंट विदाउट सच रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रेगुलेटर, तो इसमें भी वो गिल्टी हो जाएगा क्योंकि उसने ये डिस्क्लोज करा है पूरे क्लाइंट्स को. वेबसाइट एड्रेस जो है एनुअल बेसिस पे एनुअल फॉर्म रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द मेंबर पेइंग फीस और सेम टाइम कैन बी टेकन एज एंट्री ऑन रिकॉर्ड. तो वेबसाइट एड्रेस जो है वो एनुअल बेसिस पे ऑब्टेन करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द मेंबर वाइल पेइंग फी, द सेम बी टेकन एज एन एंट्री रिकॉर्ड. ठीक है, तो उसे नहीं करा तो वो गिल्टी हो जाएगा. अब क्या है इसमें, कमेंट विथ रेफरेंस टू द CA Act 1949 एंड शेड्यूल्स. अ स्पेशल नोटिस हैज़ बीन इशूड for a resolution at third annual general meeting of LED Limited providing expressively a CA. Anup should not be reappointed as an auditor of the company. Consequently, CA Anup submit क्या कर रहा है, representation in writing to the company with a request to circulate the member. In the detailed representation, CA Anup include the contribution made to him in strengthening the control procedure of a company during his association or company, और also indicate क्या कर रहा है, his willingness to continue as an auditor if reappointment by the shareholders of the company. सोलिसिट कर रहा है वो क्लाइंट का वर्क, तो यहाँ तक आप सेम लिख देना पूरा क्लोज. फिर उसके बाद फर्दर सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 क्लोज 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है, राइट काय का दे रहा है, that to the retiring auditor to make representation in writing to the company. The retired auditor have right to represent to be circulated among the members of the company and to be read out at the meeting. However, the content of letter should be set out in the dignified manner. He has been acting independently and consequently through the term of his office and may in addition indicate क्या कर रहा है, if he chooses his willingness to continue as an auditor if he reappointed by the shareholder. The preposition of the auditor to highlight contribution made by him strengthening the control procedure in the representation should not be included in such representation because क्योंकि representation letter should not be prepared in the manner to seek publicity. कोई भी CA पब्लिसिटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, XYZ वो कुछ भी मैटर हो. Thus highlighting contributions made by him in strengthening the control procedure while submitting representation under दिस सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट वुड अमाउंट टू कैनवासिंग और सॉलिसिटेटिंग क्या कर रहा है, कंटिन्यूएंस फॉर हिज कंटिन्यूएंस एज एन ऑडिटर. मतलब रिटायरिंग ऑडिटर कंटिन्यू पब्लिसिटी कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली सॉलिसिट और कैनवास कर रहा है खुद का वर्क फिर से वो कंटिन्यू करने के लिए एज एन ऑडिटर. द CA अनूप जो है वो गिल्टी हो जाएगा क्लॉज 6 के अकॉर्डिंग. कोई भी प्रोफेशनल मतलब कोई भी पब्लिसिटी कर रहा है या फिर सॉलिसिट करना चाह रहा है उसका प्रोफेशनल वर्क, तो वो हेल्ड हो जाएगा गिल्टी. ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफिस ऑफ अ यंग CA, हिज फ्रेंड ऑल CA इंट्रोड्यूस्ड टू CA यंग हिज फ्रेंड्स एंड क्लाइंट मिस्टर रिच द ऑनर of an export house whose accounts has been audited by CA all for more than 15 years. After few days, Mr. Rich approached CA Young and offered a certification work which he thereto
done by CA old. CA young undertook the work as a fee which was not less than the fees charged by the CA old in earlier period. Comment करना है professional misconduct. Acceptance of original professional misconduct by a member emanating from the client introduced to him by another member. As clause 6 क्या बोल रहा है? To CA, a chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he solicit the either directly or indirectly circular, advertisement, personal communication or interview or by any other means. Further, some of the soliciting work which could counsel has prohibited included that a member should not accept the original professional work emanate क्या कर रहा है? Introduced to him by another member. If professional work of client comes directly, it should be duty to ask the client that he should come or through the other member dealing generally with his original work. In the given case, CA old introduced his friend CA young to friend and client Mr. Honor and export house whose accounts has been audited by CA old for more than 15 years. ठीक है, वो पूरा इंट्रोड्यूस करवा रहा है. After a few days, Mr. Rich approached CA Young and offered a certification work which hereto has been done by CA Old. Fees charged by CA Young is also not less than the fees charged by CA Old. In the view of the decision, CA Young should ask the client to come through CA Old. However, CA Young undertook work without informing CA Old. The CA Young जो है वो गिल्टी हो जाएगा क्योंकि उसने CA Old का वर्क लिया है, तो वो इनडायरेक्टली सॉलिसिट कर रहा है अदर CA's वर्क. A firm in practice developed a website xyz.com. The color chosen for the website was very bright green and website to run on a push technology. फिर से गिल्टी हो गया. नेम ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म भी डिस्प्ले कर दिया है, तो ये अलाउ नहीं है. पार्टनर्स ऑफ द फर्म अलाउ है, सॉरी क्लाइंट्स अलाउ नहीं है. क्लाइंट्स यहाँ पे अलाउ नहीं है इन द वेबसाइट गाइडलाइन इशूड इन दिस रिगार्ड. तो अपन ने जितने भी अभी क्वेश्चंस करे, मोस्टली मेजर क्वेश्चन जो है मेजर क्वेश्चन आपको जो दिख रहे हैं वो वेबसाइट से ही दिख रहे, तो आई थिंक ऐसे ही पूछ सकता है 4 to 5 मार्क्स के लिए. तो इसको एक बार आप कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छे से कर लेना. पोस्टिंग ऑफ पर्टिकुलर्स ऑन वेबसाइट. In the Council of Institute has approved posting of particular website of CA in practice clause 6 of part 1 of schedule 1 to the CA subject to the prescribed guidelines. The relevant guidelines in the context of the website hosted by XYZ are no restriction on the color. कलर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कौन सा भी कलर यूज़ कर सकता है. पुल मॉडल पे होनी चाहिए, पुश पे नहीं होनी चाहिए. नेम ऑफ द क्लाइंट और फीस जो है वो नहीं दे सकते. हाउएवर डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द क्लाइंट एंड फीस ऑफ द वेबसाइट ऑन द वेबसाइट जो है परमिसिबल व्हेन रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेटर वेदर और नॉट कंस्टिट्यूटेड अंडर ए स्टेचू इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, प्रोवाइडेड दैट सच डिस्क्लोजर इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेगुलेटर, प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर. ठीक है, वेयर सच डिस्क्लोजर ऑफ नेम्स और क्लाइंट एंड फीस चार्ज जो हो रही है ऑन द वेबसाइट, द मेंबर फर्म shall ensure that mention on the website in italics disclosure that this disclosure is in the terms of the requirements having jurisdiction in the name of the country area or where such regulator has jurisdiction. In the view of the above, Messer XYZ who has no restriction on the colors in the website but failed to satisfy two guidelines, सेम अपन ने ऊपर जो पढ़ा वैसा ही है ये क्वेश्चन. बस 20 तक और करने क्वेश्चन. ठीक है, तो आपका पूरा क्लोज 6 हो जाएगा. इसको आप पढ़ लोगे, इनफ क्वेश्चंस फॉर डैट. अ पार्टनर ऑफ अ फर्म ऑफ अ CA ड्यूरिंग TV इंटरव्यू एंड, हाँ ये सबसे बड़ा क्लोज है तो इसको कर लोगे, तो उसके बाद सब छोटे छोटे हैं. बायोडाटा ऑफ द फर्म टू द चेयरपर्सन. सच बायोडाटा में क्या डिटेल्स है? इंटरनेशनल फर्म विद द फर्म वॉज एसोसिएटेड. इट ऑल्सो डिटेल अचीवमेंट्स भी है उसमें, एंड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन इन द कंट्री. द चेयरपर्सन रीड आउट द सेट बायोडाटा ड्यूरिंग द इंटरव्यू, डिस्कस वेदर द एक्शन जो है CA की उसमें मिसकंडक्ट करा है या नहीं. क्लोज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1. ठीक है, ये क्लोज 6 लिखा हुआ है पूरा. उसके बाद क्या है वो, ये अदर मीन्स प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. द बायोडाटा वॉज हैंडेड ओवर टू द चेयरपर्सन. किसको दिया? चेयरपर्सन ड्यूरिंग द TV इंटरव्यू बाय CA विच इंक्लूड क्या कर रहा है? डिटेल ऑफ द फर्म.
फॉर्म की डिटेल्स, अचीवमेंट्स क्या है, पार्टनर एक्सपर्ट काई में है, कौन सी फील्ड में, टैक्सेशन की, सिंपली रीड आउट इन द सेम डिटेल एसोसिएशन विद द इंटरनेशनल फर्म। ओके, तो अचीवमेंट जो है वो सब के सामने डिस्कस कर रहा है, तो ये अलाउ नहीं करता है। क्लॉज 6, क्लॉज 6 जो है ये सब चीज़ें अलाउ नहीं करता है, नॉट अलाउड। सच एन एक्ट वुड बी लीड टू द प्रमोशन, क्योंकि इनडायरेक्ट वो पब्लिसिटी प्रमोट कर रहा है खुद का बिजनेस को, एज वेल एज द पार्टनर एज सच हैंगिंग ओवर द बायोडाटा कैन नॉट बी अप्रूव्ड, द पार्टनर वुड बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है। An advertisement was published in the newspaper containing the photograph of Mr. X, a member of institute, wherein he was congratulated on the occasion of opening ceremony of his office. Publishing an advertisement containing photograph. इसमें शेड्यूल 6 क्या बोलता है? एक्स पब्लिश क्या कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़ पेपर कंटेनिंग फोटोग्राफ ऑन द ओकेशन ऑफ ओपनिंग सेरेमनी, मतलब उसका ओपनिंग सेरेमनी पे वो फोटोग्राफ दे रहा है न्यूज़पेपर में। ऑन दिस कंटेस्ट इट मे बी नोटेड डेट, एडवर्टाइजमेंट विच इज़ पुट बाय द मेंबर इज़ क्वाइट प्रोमिनेंट। If soliciting the work is allowed, the independence and forthrightness of a chartered accountant in the discharge of duty cannot be maintained. The above therefore amounts to soliciting professional work by advertisement directly or indirectly. Therefore held हो जाएगा गिल्टी काई में क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CA एक्ट 1949, क्योंकि वो ओपनिंग सेरेमनी की पब्लिसिटी नहीं कर सकता है न्यूज़पेपर में बाय गिविंग फोटोग्राफ्स। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, कब कब वो कर सकता है, या तो उसकी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम और डायमंड जुबली हो गई है फर्म की, तो वो कर सकता है। मिस्टर एक्स CA and a proprietor of X and Company wrote several letter to the assistant registrar cooperative society stating that though the firm was on the panel of auditor, no audit work was allocated to the firm, and further request him to look into the matter। तो सॉलिसिट क्या कर रहा है वो? प्रोफेशनल वर्क को। यहाँ तक आप पूरा ये शेड्यूल एक्सप्लेन करिए। उसके बाद इन द गिवन केस क्या दिया है? चार्टेड अकाउंटेंट एक्स, प्रोप्राइटर ऑफ मेसर्स एक्स एंड कंपनी, wrote several letter to the assignment registrar of cooperative society requesting for allotment of audit work in the similar cases. It was held that चार्टेड अकाउंटेंट ने क्या करा है वो गिल्टी हो जाएगा, क्योंकि उसने रजिस्ट्रार को रोड करे सर्वल लेटर रिक्वेस्टिंग फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑडिट वर्क को, मतलब वो अनादर CA को कर सकता है, पर उसने तो किसको कर दिया? कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो ये जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा क्लॉज 6 के अकॉर्डिंग। और द राइटिंग ऑफ कंटिन्यूस लेटर टू ascertain द रीज़न फॉर नॉट गेटिंग द वर्क इज़ क्वाइट ऑल राइट, बट इन द केस आइदर अमाउंट टू रिक्वेस्ट अलाउड टू द वर्क, देन मिस्टर एक्स विल बी लाइबल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, देयरफॉर वो गिल्टी हो जाएगा। मिस्टर निगल, अ चार्टेड अकाउंटेंट, डिलीवर क्या कर रहा है वो? स्पीच इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। वाइल डिलीवरिंग द स्पीच ही टोल्ड द ऑडियंस दैट ही इज़ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ओके, तो उसने क्या कर दिया? खुद की क्वालिटीज़ बोलना शुरू कर दिया, वो खुद की पब्लिसिटी कर रहा है। एंड इस फर्म, मतलब उसकी फर्म की भी करना शुरू हो गया कि वो काई में एक्सपर्टाइज है, और उसके रेट फीस डिस्क्लोज कर रहा है, जो कि अलाउ नहीं है। ही ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑडियंस टू अप्रोच हिज फर्म CA फॉर दिस सर्विस एंड रिक्वेस्ट द ऑडियंस। He also distribute his business cards and telephone number of firm in those audience। तो इसमें वो क्या हो रहा है? Using designation other than CA and providing details of service offered। इसमें वो designation भी अलग यूज़ कर रहा है। यहाँ तक आप पूरा ये लिखिए क्लॉज एज इट इज़। Such a restraint has been put so that member maintain their independence of judgment and may be able to command respect from their prospective clients। Section 7 of the CA Act 1949 of the first schedule part 1 clause 7, professional attainments of the service as a member। It also restrains a member from using any designation expression other than that of chartered accountant in document through which the professional attainments of the member would come to the notice of the public under this clause। Use of designation or expression other than CA for a chartered accountant in practice on professional document, visiting cards, etc. misconduct
ये अमाउंट्स क्या करेगा टू मिसकंडक्ट, ये सब यूज़ नहीं कर सकता अनलेस अ डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी और टाइटल इंडिकेटिंग मेंबर और अदर प्रोफेशनल बॉडी रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करा है। तो मेंबर में अपीयर ऑन अ टेलीविजन एंड फिल्म, एग्री टू ब्रॉडकास्ट इन द रेडियो और गिव लेक्चर एट फोरम एंड मे गिव नेम्स, डिस्क्राइब देमसेल्फ एज अ सीए, उसकी क्वालिफिकेशन बता रहा है, नॉलेज क्या है उसमें डायरेक्टली रिलेवेंट टू सब्जेक्ट मैटर of the program, but no reference should be made in case of practicing member to the name and address of the service of his firm. What he may say or write must be promotional or of his or his firm must be an objective professional view of the topic under consideration. Thus it is improper to use designation के management expert. आप कंपनी सेक्ट में भी पढ़ते हो कि वो ऐसे सीए क्या क्या वर्क नहीं कर सकता है, तो सेक्शन 144 अपन को बताता है, और आप सीए डेजिग्नेशन सीए यूज़ कर सकते हो। तो वो उसने खुद के लिए क्या करा, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जो कि अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। सिंस नाइदर इट इज़ अ डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश अंडर लॉ रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉट इट इज़ द प्रोफेशनल मेंबरशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द काउंसिल, देयरफॉर ही इज डीम्ड टू बी गिल्टी, वो गिल्टी हो जाएगा मैनेजमेंट एक्सपर्ट की सर्विस डेजिग्नेशन यूज़ करने के लिए इन द स्पीच। और फिर उसने जो अपना पब्लिसिटी करा है कार्ड्स और ये सब, तो वो क्लोज 6 में हो जाएगा। और वो दूसरी डिग्री यूज़ करा है ऐसे डेजिग्नेशन, तो ये अपन को क्लोज 7 बोलता है, अपन वो आगे पढ़ेंगे। Mr. A, newly qualified CA, started his practice and sought client telephone calls from family and friends, almost all the employee in retail business. One of the friend जो है idea to start online business, easy online stock certification सर्विस, ये अपन ने सेम आगे पढ़ा है, वो का वही क्वेश्चन है। डिजिटल मार्केटर, उसको कमीशन बेसिस पे वो दे रहा है, तो ये क्लोज 6 में गिल्टी हो जाएगा, क्योंकि वो इसका अपन ही कंक्लूजन पढ़ते हैं, तो आपको भी याद हो जाएगा। अपन एक और बार सेम क्वेश्चन कर लेते हैं, नो इशू। मिस्टर ए शेयर क्या कर रहा है, वेबसाइट एड्रेस टू ऑल सोशल मीडिया पोस्ट और स्टोरीज, और वो टैग करवा रहा है, और फ्रेंड्स और फैमिली से कर रहा है, वो अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी रखते इसलिए वो अलाउ नहीं है। और वो कैप्शन क्या दे रहा है, ईजी ऑनलाइन स्टॉक सर्टिफिकेशन सर्विस मेंशन इन करेंट क्लाइंट एज वेल, तो ये सब जो है वो प्रोहिबिट कर रहा है किसको, क्लॉज 6 को। क्लॉज 6 सॉलिसिट वाला क्या बोलता है, ये सब आप नहीं कर सकते हो वेबसाइट पे। क्लॉज 7 में कितने क्वेश्चन हैं, 5। अपन क्लॉज 7 भी यही कवर कर लेते हैं, बिकॉज ये दोनों मेन क्लॉज है। क्लॉज 7 में क्या बोला है, एडवर्टाइज इज प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स और सर्विस और यूजेज एनी डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन अदर देन सीए। ये अपन ने अभी ऊपर पढ़ा कि वो क्या यूज़ कर रहा था, मैनेजमेंट सर्विस का, तो उसको सीए ही यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्लॉज 7 के अकॉर्डिंग गिल्टी हो जाएगा। एडवर्टाइज करने के लिए, प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स की या फिर डेजिग्नेशन बदलने के लिए सीए को छोड़ के कुछ और, ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड्स और साइन बोर्ड, अनलेस कब वो कर सकता है, या तो वो डिग्री यूनिवर्सिटी की हो, established by the law of India or recognized by central government or title indicating the member of ICI or any other institution that has been recognized by the central government or may be recognized by the council, provided that a member in practice may advertise through write-up setting out the service provided by him or firm, any particulars of the firm subject to such guideline as may be issued by council। तो वो डेजिग्नेशन यूज़ नहीं कर सकता, एडवर्टाइज नहीं कर सकता है, पर तब तक मतलब कब वो कर सकता है, अगर या तो उसकी डिग्री जो है यूनिवर्सिटी की हो, जैसे कोस्ट अकाउंटेंट, CAS, CMA, ठीक है, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करी है। मिस्टर एम अ CA in practice has printed visiting card which beside other detail also carries a quick response QR code. Thus visiting card as well as QR code contains his name, office and residential address, contact details, email ID, name of the firm, ओके, उसकी वेबसाइट का नाम। अब क्लॉज 7 के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो प्रिंटिंग ऑफ QR कोड ऑन विजिटिंग कार्ड, सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग लिख दोगे कि ये टॉपिक क्या बोलना चाह रहा है, तो बहुत सही होगा। फिर एज पर क्लॉज 7 अपन को पूरा क्लॉज लिखना है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द CA एक्ट, मिसकंडक्ट अटेंडमेंट ऑफ सर्विस तक, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड क्या बोल रही है, ऑल्सो क्लेरिफाई कर रही है, मेंबर इन प्रैक्टिस अलाउ टू प्रिंट QR कोड, ये आप पूरा लिखना। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने अलाउ करा है प्रिंट करने के लिए QR कोड ऑन द विजिटिंग कार्ड, प्रोवाइडेड डेट कोड डज नॉट कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट अदरवाइज परमिसेबल और प्रिंटेड ऑन अ विजिटिंग कार्ड, जो विजिटिंग कार्ड पे परमिसेबल है वो कर सकते QR कोड में,
printed on the visiting card QR code beside other details. The visiting card as well as QR code contain his name, office and residential address, contact detail, email ID and the name of the firm website and also otherwise allow क्या कर रहा है, printed on the visiting card. ठीक है, तो वो गिल्टी नहीं होगा क्योंकि वो QR कोड में फालतू की उसकी खुद की डिटेल्स नहीं दे रहा, तो QR कोड तो अलाउ है, तो इसलिए वो गिल्टी नहीं होगा. ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है. प्रैक्टिसिंग CA use a visiting card in which he used designated himself beside a CA cost accountant. Is this a misconduct? Cost accountant as stated in the illustration given in clause 7 with the reference to the tax consultant. This would also constitute misconduct under section 7 of the act. Read with clause 7 of the first schedule of CA act. तो ये पूरा क्लॉज आपको एक बार करना पड़ेगा तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. CA Chartered accountant in practice cannot use any other designation than CA. Nevertheless, a member in practice may use other letter or description indicating other membership of accountancy bodies which have been approved by the council. Thus, it is improper for CA to state in his document he is a cost accountant. However, as per CA Act resolved that members are permitted to use other letter ICSI का कर सकते हैं CA cost accountant but does not यूज़ द डेजिग्नेशन कॉस्ट अकाउंटेंट. मतलब वो सिर्फ इंडिकेट क्या कर सकते हैं, काउंसिल ने क्या बोला है कि मेंबर्स आर परमिटेड टू यूज़ लेटर्स इंडिकेटिंग मेंबरशिप. मतलब जैसे आप लिख रहे हो आपके नाम के आगे CA, तो आप सिर्फ इतना सा आप इंडिकेट कर सकते हो कि उसके पास इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट की भी है, पर आप डेजिग्नेशन यूज़ नहीं कर सकते हो CA में, पर आप इंस्टीट्यूट का जो है नाम डिस्क्लोज कर सकते हो. ओके. Be a chartered accountant in practice is partner in 3 firms. While printing his personal letterheads, B gave name of all firms in which he is a partner. Advertisement of professional attainments. तो उसने एडवर्टाइज क्या करा है, पर्सनल लेटरहेड पे सारी फर्म्स का नाम दिया है जहाँ पे वो पार्टनर है. तो आप एक क्लोज लिखिए पहले. प्रोहिबिट एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोफेशनल अटेनमेंट्स ऑफ सर्विस एज अ मेंबर. इट ऑल्सो रिस्ट्रेन्स अ मेंबर फ्रॉम यूजिंग एनी डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन अदर देन CA in document through which professional attainments of the member would come to the notice of the public. Even a member is not permitted to specify the date of setting up of practice or of establishment. मेंबर को इवन परमिटेड क्या नहीं है, डेट कब उसने सेट करा है, प्रैक्टिस, लेटर हेड्स और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्म ऑन लेटर हेड्स. तो वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्म और कुछ भी वो लेटर हेड पे नहीं स्पेसिफाई कर सकता है. हाउएवर देयर इज़ नो प्रोहिबिशन फॉर प्रिंटिंग नेम of all the 3 firm on the personal letterhead in which a member holding certificate of practice is a partner. ओके देखो अब इसमें क्या बोला है कि CA जो है वो 3 फर्म को डिस्क्लोज कर रहा है, तो वो 3 फर्म्स को नॉर्मली डिस्क्लोज कर सकता है लेटर हेड पे जहाँ पे वो कौन है, पार्टनर है. अ प्रैक्टिसिंग CA यूज विजिटिंग कार्ड which he designate himself beside a CA as a tax consultant. टैक्स कंसल्टेंट. तो आप इसको सबसे पहले आप इसकी पूरी हेडिंग में लिख देना अच्छे से पूरी एक लाइन में. फिर उसके नीचे आप क्लॉज 7 का रेफरेंस देना. रीड विद द क्लॉज जो भी पार्ट 1 शेड्यूल फर्स्ट और ये सब. फिर उसमें क्या बोल रहे हैं वो पूरा आप लिखो. चार्टेड अकाउंटेंट डॉक्यूमेंट थ्रू प्रोफेशनल अटेनमेंट नोटिस इन द पब्लिक. ठीक है. फिर उसके बाद अंडर दिस क्लोज, अब यहाँ से अंडर दिस क्लोज क्या बोला है, डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन अदर देन CA फॉर अ CA इन प्रैक्टिस और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट ऑन विजिटिंग कार्ड अमाउंट टू मिसकंडक्ट. पर अपन ने एक कंडीशन पढ़ी थी, अनलेस का नहीं होगा. अगर या तो कोई डिग्री है यूनिवर्सिटी की, टाइटल इंडिकेट क्या कर रहा है, मेंबरशिप ऑफ एनी प्रोफेशनल बॉडी रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द काउंसिल, तो वो टैक्स कंसल्टेंट की डेजिग्नेशन यूज़ कर रहा है. नाइदर इट इज़ अ डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ in India or recognized by central government, nor it is recognized as a professional membership by central government or the council. तो ये मिसकंडक्ट होगा क्योंकि टैक्स कंसल्टेंट जो है कहाँ पे भी वो ना तो डिग्री है यूनिवर्सिटी की और ना ही वो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करी है. ठीक है. तो ये मिसकंडक्ट हो जाएगा. इट इज़ इम्प्रॉपर टू यूज़ डेजिग्नेशन टैक्स कंसल्टेंट. A chartered accountant in practice employed as IP insolvency professional has mentioned the same on the visiting card, letterheads and other communication also.
Mr. A, who is residing in his neighbor, has filed a complaint for professional misconduct against the said member for the such mention insolvency professional on circulations. As per clause 7 of the part 1 of first schedule, चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो एडवर्टाइज क्या कर रहा है, प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स और सर्विस ऑफ विच एनी डेजिग्नेशन यूज़ कर रहा है एक्सप्रेशन अदर देन CA कहीं पे कर रहा है, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, साइन बोर्ड, अनलेस इट इज़ अ डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया. ठीक है, इसका वही अनलेस आपको पूरा बताना पड़ेगा कि कब कब वो कर सकता है, या तो वो स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी की डिग्री हो या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूशन की हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ करा है काउंसिल में, और विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो उसको छोड़ के कुछ करता है. तो हियर ए चार्टेड अकाउंटेंट है एम्पेंडेंट है IP, मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कैन मेंशन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ऑन विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड्स एंड अदर कम्युनिकेशन एज दिस इज टाइटल रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन टर्म क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल. डस कंप्लेंट ऑफ नेबर इज नॉट एनफोर्सिएबल और वैलिड. मतलब यहाँ पे क्या बोला है आपको कि कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन या फिर जो रिकॉग्नाइज किसने करी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो आप इसको याद रखना कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो अलाउड है, तो जो कंप्लेन करी नेबर ने वो वैलिड नहीं होगी. ओके, सो टुडे डेट्स इट फ्रॉम माय साइड. अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आप दूसरों को बताइए अगर किसी को क्वेश्चंस करने हो क्लोज को लेके. और मैंने फर्दर पहले वो ऐसे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले हैं, वो छोटी छोटी सी वीडियो है तो आप जाके देखिए. ये थोड़ी सी लंबी है बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर है. आप एक बार 2x की स्पीड में भी देख लेंगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा, हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए. सो एग्ज़ाम्स में बहुत कम टाइम बचा है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप अच्छे से पढ़िए. आइदर ये वीडियो आपको पसंद आ रही तो इससे पढ़िए, या फिर आपको जिससे भी, बट आप पढ़िए. एंड यू कैन डू इट. बी कॉन्फिडेंट एंड बी पॉजिटिव अप टू एग्ज़ाम्स. एंड हाँ, गर्मी है तो फिर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, आराम से पढ़िए. एंड ऑल द बेस्ट.